welcome all my viewers and listeners to the special program on opportunities for youth in public services in India. The guest for this special session is Professor D.P. Agarwal. Namaskar. So, welcome to the university studio. Namaskar. But before we set on for the main program, I'll just give you a brief introduction about Sir. Professor Agarwal is an eminent teacher and an educational administrator. He graduated from Aligarh Muslim University in Mechanical Engineering, followed by Masters and Doctorate from IIT Delhi. He joined his alma mater as a faculty member and therein became a professor and dean. He also is the founder director of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology, Gwalior. We often recollect that Sir joined as a member of Union Public Service Commission, UPSC, from 2003 to 2008, and thereby he assumed the office of chairperson of the UPSC from 2008 to 2014. I welcome you, sir, once again. Thank you very much. Sir, to begin with, as we all know, India has the largest youth population in the world, and with about 27.2% of its total population, by Indian standards, youth, we are referring here to the age group of 15 to 29. Yeah. And India has more people in the working age group than the non-working age group. Yeah. So, in a way, this youth bulge can be seen as an opportunity in the present times? I fully agree that we are lucky at this stage as a nation that we have about 30% people in the youth. They have energy, they want to do something, and I consider for any country it's an asset. But sometimes it's very interesting to realize that while we have many things with us, but that they become very productive, whose outcome is visible at national level or international level. Correct. We have to educate them, we have to train them, and we have to see what interest they have, nurture them in that interest. And I think it is the role of universities, especially university like IGNOU, where you can get education of quality from any place, any time, anywhere. Now, this opportunity is unique for any candidate who wants to make a headway and to become very productive and as a national resource. So, I fully endorse your view that youth population is an asset for nation, and I believe in the next 5 years, the way the policies of the government are and the universities are growing, they would all be trained to become very productive. I asked you this because finding employment presently, and of course previously also, it is the topmost priority of the youth in India. And have you have deciphered, is there any change in the pattern of employment in the public sector in the present times, if we compare it from the earlier days? Employment is a very critical and crucial requirement for young people. But very interestingly, in the last 10 years, at a level of government, in public discourse, we are providing number of opportunities for them to remain engaged. One is employment, other is to become a good teacher, a good scientist, a good researcher. Since the private sector has grown, India's economy is on boom. Opportunities in private sector are also emerging. Right, sir. And there is also a focus on those students who have new ideas to be a part of Startup India. So, thinking that youth will only look for employment have now changed. So, there are opportunities in a number of places. So, if you define employment in the way we defined earlier, right, yes, there are less scope, but if you define the engagement of a graduate to do something, this has increased. So, we are on a positive curve. So, there is a change in the entire tapestry. It's in the way, absolutely maybe agree more focus on also entrepreneurship. Correct. Yes, I had talked to a number of students over the last 10 years and wanted to know what are their first choices. And that will answer your second part of the question. Bulk of the students who are bright, who come from middle class,
who still want to become a part of policy making, decision making, correct. where large number of people can be influenced. So their first choice is a government job, Right, sir. which we call as a public service job. Correct, sir. Public service jobs are variety. Look at, for example, the jobs in central government, for which UPSC is the custodian to recruit the most bright young person in much more transparent manner. Right, sir. So the confidence of youth in UPSC, as you all know, being a constitutional body, is very high. Right, sir. But this body itself choose variety of civil service. We get frontline civil services, call the IAS, the IPS, the custom excise people, foreign service people. But we also select doctors Right, for the sir. country. Right. We select engineers. We also select economists. We select some teachers for some universities which are UT. connected to the government. But more importantly, we also select people for defense forces. Right, sir. Through our IMA academy, we select them 10+2. Right. We also take from CDS. So UPSC for public services, both in uniform and non-uniform, Non-uniform. is the key body to select them. And every year, the number of aspirant for different vacancies could run to about 25 lakhs. Right, sir. It's a huge number. Right, sir. Now, all these people, if the country has to progress, they require very bright people who have been educated at different places and come to the government. And I must therefore say that those who are bright people, those who have vision, they want to do something for the country, and they also want to be seen as contributing. The best job is to remain the civil service, Right, sir. to become what is called a public servant. Not that I wouldn't say that everybody should become, but those who really aspire, there is an opportunity. Right, sir. I'll just take from what you've just mentioned that there are so many now the candidates who are applying for the public services. But public sector jobs, they just constitute only 2 to 3%. So understanding the perception, because as you said that this is the first choice of the youth today, perceptions and employment preferences is very important, and the youth preferring the government jobs. But is it, at the end of the day, is it the good or bad for the overall growth of the economy? Because if we see, there are so many aspirants, right? For example, if we take an example from the state services also, you know, there are so many exams, like for example, the railways exam and the other such public services where even 30 to 40 lakh candidates have applied. So is it overall, if we see, is it good or bad for overall, you know, the growth of the economy, or where, like, your views on it, sir? Yeah, there has been a lot of discussion on this issue. One issue is, should there be too many people in government? Should government continue to do all the activities? If you look at over the years, in many sectors, government want to divest. Right, sir. So there would be scope of people to be in the position where they make policies, they implement policies, public welfare is important. So we require people, whether it's 2%, 3%, 4%. The numbers you are quoting are the leadership positions. Yeah, right, sir. In government also, there are variety of jobs. As you quoted railways. Now railway leadership is selected by us. Right, sir. But railway boards select other people who are at the bottom line of the spectrum, where you require from a hand-on worker in the railway yard or a platform to something which look at some of the supervisor jobs. Right, sir. But we want to look at the top engineers in railways. We want to look at the top planners in the railways. They are selected through UPSC. So top leadership. Right, sir. Every year UPSC would select about 3,000 people. It's not a huge number. Yeah. But the aspirant for these 3,000 positions are large, because if you are in that position, you recognize what changes you can make. Absolutely. While all kinds of people are required, I am not saying that people who are in Infosys are not contributing, they are contributing. Right, sir. And you should also remember that 80% of economy and activity occurs on street.
Right. There are 20% jobs are in conventional and what you call the former sector of the industry. 80% are on the street, which are small, tiny businesses, Right, sir. which are run everywhere. But if you look at companies like Infosys, they only constitute 20%. Right, sir. In that, if you look at the leadership people, which public service people are, is about, as you rightly say, about 2 to 3%. Right, sir. And it is these leaders, for example, how many districts we have? For each district, I require a collector Right. who is a very young man, and I'll also touch why is he be brighter. Hmm. And he runs a district, and district had more than 20 activities. So he coordinates all of them. He also look at the welfare, he look at the law and order, he look at education, he look at agriculture. So there is something which he is able to do, and that experience he transferred to the political leadership, and the rules are made. Now this nobody does. Right, sir. So there would always be a scope in public service. There would always be people who are aspiring to be, because they want to do something which they believe could be done for the people Right. at large. Basically, we should understand the hierarchy, as you say, Absolutely. and accordingly, we should also check. We can do a SWOT analysis also of what we can do and what we cannot do, because there are many a times we are misled also that we want to just occupy a position, because decision making and so on, it comes. It's See, always in public sector, you can be a position, but the responsibilities are enormous. enormous. Absolutely. And today, because of number of digitization projects, right to information, there is nothing which is hidden. So each of your action, each of your decision is in public domain. Right, sir. So you have to be acting just. That means you are aware of the rules, you are aware of the repercussion of your action, and you know within what rule you can operate. Right, sir. So it is not that you come in a position you are a powerful king. No, Yeah. you are a public Right, servant. sir. You are doing good for public. You are bound by the rules, and you have to deliver. Right. And if you don't deliver, people don't remember you. And if you deliver, people remember the collectors, Right, the other sir. senior people in their lives. Right, sir. And we have seen, you remember one time when there was a plague in Surat, Mm-hmm. and we talk about a collector who came and cleaned everything. So he is still known today. Right. Sir. Similarly, in Rajasthan Canal, when canal was not working, he made it green. So people have made a lot of contribution, which hitherto is not possible for others. And therefore, the jobs in public services are important. Let's also differentiate public sector job and public services job. Services. Public services are those whose salaries come from public exchequer. That you are a government employee Government. of a direct in the ministries, where you are paid out of the Consolidated Fund of India. Hmm. And these are voted by the parliament. If I am in education connected to that, people in the education ministry are paid from that fund. Right. But in the university, you are not directly paid by government, you are paid through agency. We also had companies of the government called public sector companies, such as NHPC, NTPC, and many more, PSUs. PSUs. Right. So they are called public sector companies, but they are called public services. For public services, it is either the UPSC, or in the state, it is the public services of the state State. who appoint for those positions. Right, sir. So please find the difference. So in matters of policy making, matters for the public, matters supporting political parties for parliament, is done by the public servants, Right. which are recruited by either by us or by the instrument of the government. For example, in the center, the top leadership is selected by UPSC, but the next leadership is done by Staff Selection Commission. Right. Similarly, in state, they would be, for example, in Madhya Pradesh, they will be Madhya Pradesh Public Service Commission. They will also be a Staff Commission. Correct, sir. So that's the difference. In addition to that, for example, in defense, there are different recruitment boards. Oh, yeah, right. In agriculture also there are different recruitment boards. They recruit people who are other than these. They are Right, also public right, service right. servants, but their functions are different. सर अभी अब आपको पता चल गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारी आई है 2020. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा जो हायर एजुकेशन का है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 26.9%.
जो कि हमें 50% तक ले जाना है 2035 तक। इग्नू का इसमें बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें। और इग्नू ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने प्रोग्राम्स सारे रिवाइज कर लिए हैं। जो हमारा बैचलर्स और मास्टर्स का जो प्रोग्राम है NEP 2020 के हिसाब से ही आया है। इट हैज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट है इसमें एंड मल्टीपल एग्जिट और एंट्री स्कीम है। आपको क्या लगता है कि NEP जो हमारा यूथ है somehow will it help to be becoming more competent and will have more employability skills because इसमें काफ़ी skill oriented courses भी incorporate किए गए हैं। So आपके क्या इसके बारे में विचार हैं कि ये पॉलिसी जो है या यूनिवर्सिटी किस हद तक इस को कामयाबी इसमें हासिल हो सकती है? देखिए, इसके दो हिस्से हैं आपके प्रश्न के। पहला तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सोच समझ कर लोगों से चर्चा करने के बाद लाई गई है। राइट सर। इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा मल्टीडिसिप्लिनैरिटी है, स्किल की जोर दिया गया है। ये भी कोशिश की गई है कि स्टूडेंट जो पढ़ना चाहें पढ़ें। यदि मान लिया उन्होंने एक विषय में अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है तो टोटल एक UG प्रोग्राम की उसको 3 साल के बढ़ा के 4 साल किया गया है और टोटल क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पर साल 40 क्रेडिट के आसपास रखी गई है। तो इसमें से ये कहा गया है कि यदि मान लिया मैं साइकोलॉजी में BA करना चाहता हूँ तो मैं 80 से लेके 100 क्रेडिट तक साइकोलॉजी से रिलेटेड उससे रिलेटेड फंडामेंटल कोर्स करूँगा। राइट सर। पर ये देखते हुए कि सभी एंगेजमेंट साइकोलॉजी में होना पॉसिबल नहीं है। तो साइकोलॉजी से जुड़ते हुए विषय या ऐसे विषय जिनमें और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कोई विद्यार्थी चाहे कि साइकोलॉजी के BA के साथ सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सीखे या वो कुछ चीज़ें ऐसी सीखे जो स्किल है। स्किल हो सकती है जो हेल्थ से रिलेटेड हो, स्किल हो सकती है जिसमें प्रोग्रामिंग तो है ही आजकल बहुत पॉपुलर है, या एग्रीकल्चर के अप्लायंसेस रिपेयरमेंट है। तो बहुत सारे करीब 40 स्किल नेशनल काउंसिल ने तैयार किया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। पहले ऐसे होता था कि मैंने फिज़िक्स करता हूँ तो फिज़िक्स ही पढ़ूंगा। अब पॉसिबिलिटी है कि आप आधा फिज़िक्स पढ़ें और आधा अपने मर्जी से अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए स्किल में जाएं या और अंदर तक जाएं उस विषय के। तो ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ये मेरा मानना है कि यस, इसके रिजल्ट निकलेंगे। ये अर्ली डेज हैं, लोग समझ रहे हैं और उसके लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है वो उसकी तैयारी की जा रही है। इसमें ये देखते हुए कि इसको यदि हम ग्रॉस एलिमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन में एक पार्ट है क्वालिटी एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एजुकेशन, बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, इसका एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज है। पर दूसरा इससे जुड़ा विषय ये है, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाएगी? वो कौन से रास्ते हैं? शिक्षा के दो ही रास्ते हो सकते हैं। राइट सर। एक रास्ता वो है कि जब हम GR की परिभाषा देखते हैं उसमें देख रहे हैं क्या उसके पास ग्रेजुएशन है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने की बात है। राइट सर। स्कूल में तो ऑलरेडी काफ़ी बच्चे जा रहे हैं। आपने देखा है कि प्राइमरी एजुकेशन में हमारे जो एनरोल्ड हैं बहुत हाई हैं। सेकेंडरी में थोड़े कम होते हैं, हायर सेकेंडरी में और भी कम है, बट इतने कम नहीं है कि जिसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन में उनमें से बहुत कम लोग आ रहे हैं। राइट सर। उसका कारण क्या है कि आधे बच्चे स्कूल के बाद अर्निंग करना चाहते हैं। तो एक वो हमेशा ही रहेगा कि कुछ बच्चे अर्निंग के लिए जाएंगे, दूसरे बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे। हायर एजुकेशन में क्या अपॉर्चुनिटी है, ये आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। अभी तक एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि उसको नौकरी मिलती थी। अब नौकरी के अलावा आपने 4 और रास्ते खोले कि भाई आप अपना काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयर बन सकते हैं, आपके नए आइडियाज़ हैं तो कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। राइट सर। आपके पास टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स आए हैं। तो ये जो ओपननेस आई है ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट करे। अब इसमें हमें ज़रूरत है कि बच्चा काम कर रहा है और उसको शिक्षा भी चाहिए, एक नई स्किल चाहिए, नया ज्ञान चाहिए, तो कौन करेगा? अभी हमारे पास 2 तरह के रास्ते हैं शिक्षा के हायर एजुकेशन में। एक है जहाँ विश्वविद्यालय में जाता है, फुल टाइम होता है,
और उससे डिग्री प्राप्त करता है। हमारे पास एक दूसरा रास्ता है जिसके लिए हमने इस देश में इग्नू क्रिएट की। पहली विश्वविद्यालय है, नेशनल विश्वविद्यालय है, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा उच्च मापदंड के साथ जब आप चाहें जिस जगह चाहें उस वक्त दी जा सकती है। राइट सर। यदि हमें एनरोलमेंट बढ़ाना है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ब्रिक एंड मॉर्टर की जो विश्वविद्यालय हैं इतने बनाए जा सकते हैं। अतः भारत सरकार ने निश्चय किया है कि जो विश्वविद्यालय नेक के एक्रेडिटेशन में ए के बाद हैं, ए है, ए प्लस है, ए प्लस प्लस है, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम प्रारंभ करें। इग्नू क्योंकि फ्रंट रनर है, सबसे पहला विश्वविद्यालय, आप ही से चीज़ें आई हैं, तो आपसे उम्मीद ये की जा रही है कि आप नए मॉडल निकालें, नए शिक्षा के स्तर तैयार करें, ख़ास तौर से ऐसे प्रोग्राम जो जिन बच्चे जॉब में लगे हैं उनके साथ मिलते हुए। मान लिया किसी बच्चे ने प्रोग्रामिंग सीखी एक तरह की, अब उस प्रोग्राम में मुझे एआई डालना है, राइट सर, तो आप कौन सा प्रोग्राम तैयार करके दे रहे हैं? तो उस तरह के अच्छे प्रोग्राम आप करेंगे, बच्चा शाम को करे, उसको सुबह करे, आप उसके असेसमेंट ऐसे बनाएं जो ट्रांसपेरेंट हो और बच्चे की उसमें विद्वता दिखे। तो मेरा मानना है कि डिस्टेंस एजुकेशन के बिना 50% जीआर नहीं हो सकता है, और आपका रोल उसमें अत्यधिक है। मेरी उम्मीद आपसे ये है कि आप नए मापदंड बनाएंगे, इस शिक्षा के जो भी नॉर्म्स बने वो आपके द्वारा बने। राइट सर। और ये निश्चय करें रिसर्च करके कि डिस्टेंस एजुकेशन से दी गई शिक्षा किसी भी मामले में उच्च शिक्षा में कम नहीं है। राइट सर। क्योंकि एक अंतर सिर्फ ये है जो आप समझ लें कि जब लड़का विश्वविद्यालय में जाता है तो पूरे दिन में क्लासों के अलावा वो टीचर से इंटरेक्ट करता है, वो लाइब्रेरी में जाता है, वो कैंटीन में जाता है, और वो कुछ कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अब वो जो बियॉन्ड क्लास लर्निंग है, नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बच्चा क्लास में ही न पढ़े, क्लास के बाहर भी पढ़े। तो उसमें कौन सी एक्टिविटी है जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो इग्नू यदि इस तरह के कोर्सेज तैयार करेगी, डिबेट कंपटीशन करा सकते हैं और भी कुछ करा सकते हैं। सर, हमारी यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी यहाँ पे लोकल प्लस एट द रीजनल लेवल्स जी हम ऐसी एक्टिविटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए निरंतर करते रहते हैं। अब आपको उसको क्रेडिट के इक्विवेलेंट करना है। हाँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कि उसने 3 डिबेट में भाग लिया, डिबेट में क्या अटेन किया, तो कितने क्रेडिट उसको मिले, वो दिशा आपको देनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जब डिस्टेंस एजुकेशन बढ़ेगी चारों तरफ, तो नॉर्म कहाँ से आएंगे? तो नॉर्म की जो लीडरशिप है वो आपके पास है। सर, ये आपने एक बहुत अच्छा ये बताया कि थोड़ा सा रीअलाइनमेंट और एक जो नया मॉडल देने की जो बात है, एंड जस्ट टू सपोर्ट दिस, एक जो भारत सरकार की अग्निवीर जो स्कीम है वो हमारे यहाँ से ही है, जिसमें जो अग्निवीर हैं वो यहाँ पे एक उनको डिग्री प्राप्त हो रही है इग्नू से। तो जब वो देश की सेवा भी कर रहे हैं, प्लस उनको यहाँ से भी उनको एक डिग्री उनको दी जाएगी, जिसमें क्योंकि हमारा जो स्टडी मटीरियल है वो एक काफ़ी बड़ा बैकबोन है, जो स्कीम ऑफ स्टडी जो है, तो उसी के अंतर्गत उनको ये तो बहुत ही सुखद इंफॉर्मेशन आपने दी। हाँ, कि अग्निवीर जो देश की सेवा में है और साथ साथ डिग्री पा सकते हैं। जी सर, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि नई एजुकेशन में वो चाहते हैं कि यू बिल्ट ऑन एक हाइब्रिड मॉडल का भी एक हम पायलट बेसिस पे भी देख सकते हैं, और इनफैक्ट हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हाइब्रिड मोड पे ही हैं। मैं इसमें एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि आपने ये पूछा मेरे से कि पब्लिक सर्विस। हाँ, पब्लिक सर्विस में यदि आप देखें इस वक्त में जो आईएएस की परीक्षा है, जो कॉमनली लोग आईएएस परीक्षा कहते हैं, उसको हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हैं, उसमें हर साल 11 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, 6 लाख एक्चुअली बैठते हैं और 1000 के आसपास हम सेलेक्ट करते हैं। तो इन बच्चों को तरह तरह की इंफॉर्मेशन, नॉलेज चाहिए। यदि आपके कुछ कोर्सेज उनसे अलाइन कर दिए जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं और सिविल सेवा में जाना चाहता हूं, तो एक्सपेक्ट क्या हम उसमें करते हैं, यदि उस परीक्षा का आप हिस्सा देखें तो उसमें 3 हिस्सों में परीक्षा है। वो एक है जिसको हम प्रीलिम कहते हैं। प्रीलिम के 2 हिस्से हैं,
एक है जिसमें देश के बारे में, उसकी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, जनरल स्टडीज़, जिसको हम जनरल स्टडी कहते हैं, बट उसके हिस्से हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है, सोशल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, लॉ एंड ऑर्डर है और कल्चर है। राइट सर। हम बच्चों से कह रहे हैं कि भाई जब आप इंजीनियरिंग में आ गए तो आप थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो उसको दोबारा रिवाइज करें। तो आप ऐसा कोर्स मटेरियल तैयार कर सकते हैं जो इन सब पे चर्चा करता है, और वो हमारा CBSE का 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड का जो प्रोग्राम है उसको मॉडल करते हुए विश्वविद्यालय बच्चों के लिए करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मुख्य धारा के साथ, यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो क्या सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं, उसमें आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। राइट सर। यदि प्रोग्राम आपके यहाँ अवेलेबल हो जाए तो वो डायरेक्टली आपके कोर्स ले लेंगे और उन्हीं कोर्स के क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा गौर से सोचेंगे तो मिलेगा ये। राइट सर। सर इससे बस थोड़ा सा ऐड कर देंगे कि हमारे यहाँ से लगातार हमारे यहाँ से जो विद्यार्थी हैं चयनित हो रहे हैं UPSC में। पिछले साल भी हमारे यहाँ से टॉप 10 में हमारे यहाँ के 2 स्टूडेंट्स थे, इकोनॉमिक्स के थे, एंथ्रोपोलॉजी से रहे हैं। और शायद आपको ये पता होगा कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है हमारे स्टूडेंट्स, और बिकॉज हमारा एक रिपोजिटरी है ज्ञान कोश अपने विश्वविद्यालय के ही वेबसाइट के ऊपर, जिसमें हमारा सारा जो स्टडी मटेरियल है उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। सो क्योंकि वो OER है और हमारे सारे स्टूडेंट्स और सब लोग उसका बिल्कुल बेझिझक सब इस्तेमाल कर ही रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को आप और लोगों को बताएं, और ख़ासतौर से अपनी वेबसाइट पर लिख सकते हैं कि जो भारतीय सेवाओं की सेवा में बैठना चाहते हैं ये हमारा मटेरियल यूज़ करें, और वो फ्री अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देश सेवा ही है। बिल्कुल। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं जब आगे लोगों को बताऊँगा तो ज़रूर आपकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और ये तो सौभाग्य है। आपको क्या लगता है जो पब्लिक सर्विसेज एग्जाम्स हैं दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स? जस्ट नहीं, ऐसे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है मुझे दूर तक। मैंने अभी आपसे चर्चा की कि यदि आप प्रीलिम पेपर देखें, देखिए 6 लाख बच्चे जब प्रीलिम में अपीयर करते हैं, हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि पहले सिस्टम में क्या था कि एक पेपर जनरल स्टडीज़ का होता था और एक ऑप्शनल होते थे। तो बच्चों को बहुत शिकायत ये थी कि साहब क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन होता है, तो हमारे पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। तो जब मैं चेयरमैन था तो बहुत चर्चा करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई 2 समान पेपर रखे जाएं। तो जो प्रश्न यहाँ पे है आपका, इसमें इसका उत्तर भी नहीं है, तो मैं दे रहा हूँ आपको। पहला जो पेपर है जिसको हम जनरल स्टडीज़ 1 कहते हैं, उसमें क्या सम्मिलित है मैंने अभी बताया। उसमें देश की सोसाइटी सोशल साइंस, देश की पॉलिटिकल साइंस, करेक्ट सर, देश की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, आर्किटेक्चर। अब इसमें बताएं कहाँ साइंस है? कोई साइंस है इसमें कहीं? सर एकदम आपने क्लियर कर दिया। ठीक है। दूसरा पेपर है अंग्रेजी भाषा जान के कॉम्प्रिहेंड करके उसमें से उत्तर देना। CSAT। हर बच्चा CSAT उसको कहने लगे हैं, पर उसके जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपके फाइल पे कुछ लिख के आता है। करेक्ट सर। आपके दिमाग में प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। जब आप स्कूल के विद्यार्थी होते हैं और आपने देखा होगा हर भाषा में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, राइट सर, और आपसे उम्मीद करते हैं पैराग्राफ को समझें और उसके उत्तर दें। होता है ना? बिल्कुल, स्कूलों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये चेक किया कि हर स्कूल में होता है। बिल्कुल। वो हिंदी में भी है, तेलुगु में भी है, इंग्लिश में भी है। तो हमने ये डाला क्योंकि काफ़ी काम अंग्रेजी में है, तो हाई स्कूल लेवल की अंग्रेजी हर एक बच्चे ने पढ़ी होती है, उसके पैराग्राफ को पढ़ें और उसका उत्तर दें। एक कंपोनेंट हुआ है इसका। दूसरा कंपोनेंट क्या है कि हर बच्चा हिंदुस्तान में कम से कम 8वीं तक तो मैथमेटिक्स करता है। अब यदि CBSE का देखें तो हाई स्कूल तक कंपलसरी है। यदि ISC को भी देखें जो दूसरा बोर्ड है तक उसमें भी 10 तक कंपलसरी है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, यदि आप ब्यूरोक्रेट हैं तो आपको पता लगेगा कि मेरे ज़िले की कितनी इनकम हुई और इस पैसे को मैं कैसे बांटूं, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से जैसे आप क्लास में पढ़ाती हैं कि भाई मेरी क्लास में 60 बच्चे थे, इनमें से 10% बच्चों के टॉप मार्क्स हैं, तो ये समझ तो आना चाहिए। समझ आना चाहिए। तो सेकंड कंपोनेंट है
कि जो साधारणतया नंबर्स को डील करते हैं, जिसको हम कहते हैं नंबर मैनिपुलेशन, राइट, कुछ लोगों ने इसको मैथमेटिक्स कहना शुरू कर दिया। हाँ। ये मैथमेटिक्स नहीं है। नहीं है, यदि आप बैंक का एग्जाम देखें वो इससे मुश्किल है। बिल्कुल। तो सेकंड पेपर में भी ये साइंस नहीं है। हर बच्चे को हिंदुस्तान में 10th तक नंबर का ज्ञान कराया जाता है, तो ये बिल्कुल भी साइंस से संबंधित नहीं है। मतलब दिस इज द जनरल लेवल दैट वन शुड बी नोइंग। नोइंग इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड, करेक्ट। साइंस की कितनी ज़रूरत है लिखा है उसमें, वो साइंस जो कॉमन आदमी को पता है। राइट सर। जैसे चंद्रयान जब गया तो चंद्रयान की जितनी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में छपी, आपने पढ़ी होगी, राइट सर, उतनी ही इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए। बिल्कुल। हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि उसमें कौन सा कंट्रोलर लगा था, ये नहीं प्रश्न है। प्रश्न ये है कि चंद्रयान के क्या काम थे, उसमें क्या कंपोनेंट थे, ये सब बताया गया है। राइट सर। एनवायरनमेंट डे होता है, आपको पता है देश में। बिल्कुल। उस जब एनवायरनमेंट डे होता है उस दिन इतनी सेमिनार वर्कशॉप अखबारों में छपता है, मैगजीन में छपता है। बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि उतना ज्ञान तो हो। भारत सरकार में जब आप आ रहे हैं तो एक जो साधारण ज्ञान है, साधारण ज्ञान। अब कल मुझसे कहें कि साहब 2G आपको पता नहीं है, 3G, तो ऐसे हो सकता है क्या? आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। यदि हम ये पूछें कि भाई 3G के नेटवर्क की डिज़ाइन बताओ तो गलत बात है। तो ये तो कॉमन नॉलेज है सर, आपने इसको बहुत सरलता से बिल्कुल बताया। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है जिसमें लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि आप ईमानदारी से करें और आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि राइट समय पर राइट डिसीजन लें, जिसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। अच्छा। और एप्टीट्यूड आता है क्या, मान लिया कलेक्टर साहब हैं, उनके पास एक क्वेश्चन आया कि साहब ये 3 आपके पास रास्ते हैं और ये कुल मिला के रिसोर्स है, इन तीनों में से किसको ये रिसोर्स देंगे, ये आपको सोचना है। तो ये एक एप्टीट्यूड होता है आदमी को कि वो समझे चीज़ों को और जो राइट डिसीजन ले और ईमानदारी से ले। तो एथिकल लाए हम। एथिक्स हम इसलिए नहीं लाए कि साहब ये धर्म से जुड़ी बात है। हम एथिक्स इसलिए लाए कि आप ईमानदारी से बिना इस बात को सोचे कि ये मेरा रिश्तेदार है, जो जेन्युइन आदमी को उसको दे सके। तो सेकंड जो पेपर है जिसको जनरल स्टडीज़ 2 कहते हैं, उसमें नंबर मैनिपुलेशन है, भाषा को समझ के उत्तर देने की बात है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ज़रूरी है और डिसीजन मेकिंग आवश्यक है। तीसरा उसमें ज़रूरी है कि आप में एटीट्यूड होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है दूसरे की बात सुने, नीचे वाले ने जो लिखा है उसे समझें। तो ये जो गुण है जिसको आजकल हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, वो आने चाहिए। राइट सर। तो इसमें कहाँ इंजीनियरिंग की बात है? सर ये थोड़ा भ्रम था, पता नहीं क्यों इतना बड़ा भ्रम लोगों ने फैलाया है। करेक्ट सर, क्योंकि ये यदि इसको ये भी कहने लगते हैं कि साहब मैनेजमेंट के बराबर है, CSET वाला, तो कितनी जगह टेस्ट ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ BBA MBA के एडमिशन हो रहे हैं सभी तरह के बच्चे ले रहे हैं। बिल्कुल। इंग्लिश का ग्रेजुएट भी जा रहा है, कॉमर्स का ग्रेजुएट भी जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी जा रहा है, सभी इंजीनियर तो बन नहीं रहे MBA। करेक्ट सर। तो ये मिथ्या है, भ्रम है। मैं आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, UPSC की कोई भी परीक्षा, ख़ासतौर से सिविल सेवा परीक्षा, किसी विषय की तरफ झुकी नहीं है। ये बच्चे के ओवरऑल जानकारी हम ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि आप देश की सर्वोच्च सेवा में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही सरलता से सर आपने हम सबको समझाया कि क्योंकि अगर हम एक जो रीडिंग स्किल्स जो आपने जिस बात पे स्ट्रेस करी है कि अखबार में ये निकलता है, लेटेस्ट न्यूज़ है, तो शायद अगर हम उसी से अवगत रहें तो बहुत, जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट में जाते हैं वही बच्चे कामयाब होते हैं जो देश की जानकारी रोजाना रखते हैं। राइट सर। और उसके लिए आपको 5-6 साल ज़िंदगी भर अखबार पढ़ना पड़ता है। हम सब ने न्यूज़पेपर इतनी छोटी उम्र से पढ़ना शुरू किया, अच्छी मैगजीन भी पढ़ते हैं, हिंदी की, अंग्रेज़ी की, अंग्रेज़ी का अखबार भी पढ़ते हैं, हिंदी का भी पढ़ते हैं। इन दोनों में एक ख़ास बात है, देखिए आप जिस राज्य में हैं उस राज्य की भाषा में अखबार पढ़ने से उस देश की जनता क्या कर रही है इसका ज्ञान होता है। और हम जो सिविल सेवा में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जाने कि देश में क्या हो रहा है और उनकी एक सोच बने। सोच वो कोई कोचिंग सेंटर वाली ना हो, इसलिए आपका रोल बहुत अधिक है। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से आएगी तो कलर्ड नहीं होगी। अब ऐसे तो हो नहीं सकता आप कुछ पढ़े नहीं, लिखे नहीं और सर्वोच्च सेवा में चले जाए, तो नहीं हो सकता। राइट सर। बट जैसे हम ये देखते हैं द पैटर्न दैट इज इमर्जिंग इज कि साइंस के जो ग्रेजुएट्स हैं दे टेक सम स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जाम, दे गो फॉर सब्जेक्ट्स फ्रॉम सोशल साइंसेज। होते तो वो इंजीनियर हैं
बट वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट लेकर के तब उसमें भी थोड़ा सा एक कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से आई एम जस्ट स्पीकिंग, तो ये होता है कि सोशल साइंस के तो कैंडिडेट्स होते ही हैं, बट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी दे गो फॉर सोशल साइंसेस। तो यहाँ पे कहीं एक वो डिमार्केशन या वैसा नहीं है? देखिए, डिमार्केशन तो इसलिए नहीं किया गया कि ये फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम दी गई है कि एक पेपर इलेक्टिव है। पहले 2 हुआ करते थे, पहले 2 थे, विच आई चेंज टू 1। ये डिस्क्रिमिनेशन अलग रहे। हाँ। कोशिश की गई है कि जितनी ये परीक्षा है सबके लिए बराबर। तो उसमें सेकंड जो हमारा मेन पेपर है उसमें एक ऐसे है और 4 जनरल स्टडीज, वो सबके लिए कॉमन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब ये बच्चे की मर्जी है। हाँ। अब इसके कई कारण हैं। एक तो तरफ ये प्रश्न उठता है कि सब साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चे ही आ रहे हैं, पर पेपर तो सोशल साइंस का ही ले रहे हैं, तो ये तो डिफरेंशिएशन ही गलत हो गया। दूसरा ये कि जो ये बच्चे हैं, यदि आप इस देश के पेरेंट्स से पूछें तो कोई पेरेंट्स ऐसा है जिसका बच्चा होशियार हो पढ़ने में, उसको कहता है साइंस और मैथमेटिक्स मत लो। 10+2 में जो रजिस्ट्रेशन है वो साइंस और मैथ्स में ज़्यादा है। पहली चॉइस बच्चे की क्या है? डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, जो साइंस से रिलेटेड है। फिर फिजिक्स करूंगा, मैथ्स करूंगा। अब और ऑप्शन निकले हैं, 5 ईयर लॉ करूंगा, CA करूंगा, CS करूंगा। तो प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ झुकाव है। हाँ, राइट, करेक्ट। तो इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में बात की है कि यदि पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं तो एक स्किल भी सीख लें जिसमें जॉब मिले। एक तरफ तो ये डायलॉग है, दूसरी तरफ ये बच्चे की फ्रीडम है कि जिस विषय को पढ़ना चाहे वो पढ़े। बिल्कुल। फ़ायदा उनको ये है कि ये बच्चे समय समय पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते रहें और उनको एक प्रैक्टिस हो जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे सक्सेस करें। बिल्कुल। दूसरा, करिकुलम जो प्रोफेशनल कोर्सेज का है, जब डिग्री उनको मिलती है वो 4 साल का करिकुलम है। अभी तक BA प्रोग्राम 3 साल का था, जिनमें 2 ही साल में अधिक पढ़ाई थी। तो ये देखा गया है कि ये बच्चे जब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेते हैं तो नॉर्मल बच्चे से बेहतर करते हैं। क्यों? कि उनको प्रैक्टिस है, टू द पॉइंट लिखने की आदत है, और क्या विषय पे कितना लिखना है वो भी अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये तो मोस्टली सेंट्रल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पर आपको थोड़ा सा अगर आपके व्यूज़ मिलें कि रीजनल लेवल पे भी दे आर मैनी, वो वैसे आप एड्रेस कर चुके हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है। इस देश में 6 कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं में 315 से लेकर 325 तक UPSC को बनाया गया है। उन्हीं धाराओं में ये कहा गया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है जिसको चयन ईमानदारी से, बिना बाइसिंग के अच्छे लोगों का होना चाहिए, ऐसे ही राज्यों में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। राइट सर। राज्यों ने भी उन पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया है। उनको अलग अलग दायित्व भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरल पब्लिक सर्विस कमीशन में केरल सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं उनका चयन होता है। तो वहाँ स्टाफ सिलेक्शन नहीं है। ओके। कुछ राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र है, जहाँ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है जो क्लास 1 वैकेंसी देखता है। ओके। जो नीचे की वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन देखता है। तो स्ट्रक्चर सिमिलर है। कभी कभी ये देखा गया है, क्योंकि राज्य की इकाई बहुत नज़दीक होती है, वहीं सरकारें भी बैठती हैं। यदि भारत सरकार को कंपेयर करें तो भारत सरकार का जो ऑपरेशन है देश भर में है। UPSC के पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे देश की हैं। मुझे एक्सपर्ट चुनना है तो मैं कहीं से लूँगा। अच्छा, राज्य सरकारों में वो अपने राज्यों से लेते हैं। तो यदि मुझे हिस्ट्री का एक्सपर्ट चाहिए तो मैं कभी IGNOU से लूँगा, कभी JNU से लूँगा, कभी अलीगढ़ से लूँगा, तो मैं कभी तमिलनाडु से भी लूँगा। तो वो सुविधा उधर नहीं है। ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते, पर उसमें खर्चा आता है। राइट। दूसरा ये है कि भारत सरकार ने ये बहुत अच्छी बात की है, और मैं कहूँगा कि भारत सरकार करती रही है, कि जब वो मेंबर बनाते हैं वो देख लेते हैं कि वो एक अच्छे स्तर पे आ चुका है। तीसरा ये है कि उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 वर्ष की है, जो राज्यों में 62 वर्ष है। 62। तो ये जो 3 साल का जो डिफरेंस है उसमें अच्छे लोगों का चयन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो यहाँ पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में,
वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि भारत सरकार चाहे वो डायलॉग कर सकती है कि चाहे जो सुविधा हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, यदि वही आप उनको देने लगे तो जो शिकायतें आती हैं वो ठीक हो जाएंगी। पर ऐसा मेरा मानना है कि वो लोग भी मेहनत करते हैं। हाँ। और वहाँ हर साल सिलेक्शन होते हैं। हमारे यहाँ पक्का है कि कोई कैलेंडर फिक्स है। कैलेंडर फिक्स है, वो उनके यहाँ थोड़ा वेरिएबल है। हाँ, यस, राइट सर। बट वो ज़रूर है। यूपीएससी बार बार ये कोशिश करता है, एक संस्था है जिसको हम कहते हैं कमेटी ऑफ ऑल चेयरमैन्स, जिसमें चेयरमैन यूपीएससी उसके अध्यक्ष होते हैं, और जितने चेयरमैन हैं उनकी साल में एक मीटिंग होती है, और जो जिन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए उन पे चर्चा होती है। और जहाँ इस बात की आवश्यकता है कि यूपीएससी उनकी ट्रेनिंग करे तो यूपीएससी ट्रेनिंग करती है। तो हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो वही करें। हाँ, क्योंकि सबसे पहल तो यूपीएससी ही करता है, देन इट इज बीइंग अडॉप्टेड एंड अडैप्टेड बाय द स्टेट पब्लिक। कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि बहुत सारे राज्यों के लोग नीचे में वो ट्रेनिंग करने आए, किया है। राइट सर, थोड़ा सा जैसे ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, सब समहाउ डू यू फील दैट दे हैव डिक्रीज्ड द प्रोस्पेक्ट्स इन द पब्लिक? नॉट एट ऑल, वो तो है ही नहीं। ओके, मैंने पहले ही कहा है कि अब वो रास्ते एंगेजमेंट में बदले हैं। हाँ, स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का एंगेजमेंट कर सकता है तो जाएगा। इतनी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, सैलरीज भी काफ़ी हैं। आप आईटी सेक्टर में लगा लें, यदि कंट्री की इकोनॉमी देखें तो 50 से 60% तक जो कंट्री की जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आती है। सर्विस सेक्टर में वही हैं जो टेक्नोलॉजी में लगे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर है, चाहे वो कंपनीज़ हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल में कंपनीज़ में जो जीडीपी ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जीडीपी की ग्रोथ पिछले साल 8% से ज़्यादा पहुंच गई। तो टेक्नोलॉजी तो रहेगी, टेक्नोलॉजी का यूज़ गवर्नेंस में भी बढ़ा है। अब तो जानते हैं कि पिछले 10 साल में हमने कहा कि डिजिटल इंडिया है, तो हर काम डिजिटाइजेशन हो रहा है। आप भी कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जितने स्टूडियोज हैं इतने सारे लोगों तक, तो डिजिटल वर्ल्ड तो रहेगा। तो अब डिजिटल में इशू सामने आ रहा है, क्योंकि जो प्रश्न शायद आप मुझसे करना चाह रही हैं वो ये है कि क्या डिजिटाइजेशन होने से लोगों के जॉब में कमी आएगी। हाँ, ये मेरे ख्याल से लगता है बैक ऑफ माइंड है। इसका उत्तर बहुत आसान है। कुछ विधाओं में जो प्रेजेंट जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगे, बट उतने ही जॉब उन विधाओं के प्रयोग करने से जो आएंगे उतने ही जॉब आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यदि मुझे आज सी का प्रोग्राम लिखना था तो कल कोई और प्रोग्राम लिखना है। यदि एआई आएगी तो एआई को कैसे हम ट्रेन करेंगे, उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, तो एनालिटिकल काम बढ़ जाएगा। राइट सर। तो जॉब्स कम नहीं होंगे, जॉब्स की क्वालिटी बदल जाएगी। तो अब आपका रोल हो गया यूनिवर्सिटीज़ का कि स्टूडेंट्स को उस दिशा में कन्वर्ट करें। करेक्ट सर। तो जो ड्रेजरी वाले जॉब थे, रिपीटेटिव जॉब से कम हो जाएंगे। आई थिंक दैट रीअलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट। So we are almost at the end of the session, but before that, like, what are your suggestions for the youth who want to join public services? I always believe for country's success, we require the best people who are committed to come to public services. Public services will occupy a prime place purely because they advise government, they implement government policies, they ensure the benefit reaches to public at large, and the country's growth occurs. I would urge any youth who could commit himself to compete across the nation to try and come, not only in non-uniform services but also on uniform services. Public services are also open for specialists such as engineers, doctors, scientists, psychologists, and many more. This platform gives me an opportunity to once again say, if you are a bright young people, Government of India through UPSC ensures
that without any bias, without any support, you can occupy the best position in this country. I must also tell you that institutions like IGNOU, whose resources are available freely, could help you to try out in examination the material which they develop. Please ensure that your goal must be clear, and if your goal is set, there is no dearth of resources. The uniform platforms available such as NPTEL, Gyanvani and Swayam, Right. and the resources of open nature from IGNOU would ensure that you are successful. I wish you all very best. Thank you. Thank you so much, sir. You have rightly summarized the overall this thing, and there will be many key takeaways from today's session for our viewers and listeners. And IGNOU has always been, helping our students to become more empowered and be participative, so that in the longer run they are about to bring the social change, and they are contributing to the overall the growth of the country. Thank you so much, sir, once again. It has been my pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you.